Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का यूनिट नंबर 8 and the title of unit is Appreciating the Value of Labor. तो स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग. आपके ख्याल में कौन सा काम है जो कि लेबर की कैटेगरी में आता है? लेबर की कैटेगरी में हर काम आता है, फिजिकल काम, खास करके वो काम जिसमें हम मुशक्कत करते हैं. और क्या लगता है आपको कि किसी भी जो मजदूर है उसका स्टेटस क्या है मुआशरे में? जी, तो इसको अब हम रीडिंग में देखते हैं. Labor means physical work or the work done with the hands, especially hard work. Appreciating the value of labor means that labor is worthy of respect in all forms. Manual or skilled work is in no way less important than the managerial or mental work. Dignity of labor indicate that it is better to work than to stay idle. It is also upholds the virtue of equality. People who earn money by easy means are not superior to those who earn wages by hard and honest labor. Islam gives great importance to honestly earned income and discourage money earned dishonestly by deceiving or depriving anyone of his right. The Holy Rasul Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam worked with his own hands. When the Masjid Quba was being built, the Holy Rasul Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam worked along with his companions radiyallahu ta'ala anhuma. He would also repair his shoes and mend his clothes with his own hands. He helped his wives with household tasks. The Holy Rasul is reported to say, "A labor is a friend of Allah." The Holy Rasul taught the dignity of labor. He also stressed to be fair and courteous to workers. Islam is against the exploitation of workers. The Holy Rasul Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam said, "Give wages to a laborer before his or her sweat dries." Real greatness is hard to achieve without labor. In fact, it is the labor and industry which has contributed to the progress of civilization. Most of the facilities of the life today are due to the hard work done by people. Many people have mistaken idea that manual labor is the means of a poor man's livelihood. We should not regard physical labor as less respectable than mental labor. Without the tough labor of farmers, we would not get food. We all know that food keeps us alive and help us to do other activities. No profession by itself is high or low. It is the way in which we pursue it that makes it dignified or undignified. We should recognize the fact that all labor is sacred. A worker in the field, an artisan or skilled worker in a workshop may have a noble mission in life. He has nothing to be ashamed if he earns his living by honest and lawful means. The benefits of labor are countless. Labor reduces dependency on others and brings prosperity. It improves the worker's self-respect and cures vanity. Hard labor promotes personal health and leads to progress of the whole society. We should appreciate hard work and respect labors. We should do our daily tasks by ourselves. We ought to help our parents and pursue our friends and colleagues to do the same. This is essential because it ensures self-respect, peace of mind, and prosperity. Today's developed nation owe their prosperity and prestige to hard labor of many generations. Our religion to teach us the self-respect and dignity of labor. If the Almighty had ever meant a set of men that should do all of the eating and none of the work, He Subhanahu wa ta'ala would have made them with mouths only and no hands. And if He Subhanahu wa ta'ala had meant to another class to do all the work and no eating, He Subhanahu wa ta'ala would have made them with hands only and no mouths. Limbs are given for use. To keep them idle is to abuse them. True honor lies in the pride of being able to do one's own job by own self and also for the society. The Qaid-e-Azam Rahmatullah alayhi also laid the great stress on hard work. Once he said, "Work, work and work." You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourself, your parents and to the state. आप देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग. अब्यूज, मिसयूज करना किसी चीज को, अप्रिशिएट सराहना, तारीफ करना, आर्टिजियन, स्किल्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं कि इसके काम में महारत है, कर्टियस बहुत पोलाइट होना, डिप्राइव किसी चीज से आप किसी को महरूम ना करें, डिग्निटी इंपॉर्टेंस, एक्सप्लॉइट किसी को आपने नेगेटिवली उसका फायदा नहीं लेना, इंडस्ट्री बेसिकली आपके पास वो जगह होती है सनत जहां पर हम काम करते हैं, लाइवलीहुड आप कह लें कि इनकम या आपका जरिया माश, मैनुअल हाथ से काम करना, मीन जरिया, मिस्टेकनली गलत समझना रॉन्ग, परसुएट किसी को आप अगर कन्विंस करते हो, प्रेस्टिज उसकी रिस्पेक्ट एडमायरेशन, प्राइड फख्र महसूस करना,
प्रोफेशन पेशा या टाइप ऑफ जॉब, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, स्टेट ऑफ बीइंग रिच, परस्यू कोशिश करना, अपहोल्ड किसी को सपोर्ट करना, वैनिटी टू मच प्राइड होना। अब देखते हैं इसके उर्दू मीनिंग। मुशक्कत का मतलब है जिस्मानी काम या हाथों से किए जाने वाला काम, खासकर मेहनत। मेहनत की कदर की तारीफ करने का मतलब ये है कि मेहनत हर शक्ल में काबिल एहतराम है। दस्ती या हुनरमंद काम किसी भी तरह से इंतजामी या ज़हनी काम से कम अहम नहीं है। मेहनत की अजमत बताती है कि काम करना बेकार रहने से बेहतर है। यह मसावात की फजीलत को भी बरकरार रखता है। जो लोग आसानी से पैसा कमाते हैं वो उन लोगों से बर्तर नहीं हैं जो मेहनत और दयानतदारी से मजदूरी कमाते हैं। इस्लाम ईमानदारी से कमाई गई आमदनी को बहुत अहमियत देता है और किसी को धोखा देकर या उसके हकूक से महरूम करके बेईमानी से कमाई गई रकम की हौसला शिकनी करता है। हजूर ने अपने हाथ से काम किया। जब मस्जिद कुबा की तामीर हो रही थी तो रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते भी ठीक करते और अपने हाथों से अपने कपड़े भी ठीक करते। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामों में अपनी बीवियों की मदद करते। रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है। हजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की अजमत का दर्स दिया। उन्होंने कारकुनों के साथ मुनसिफाना और शाइस्ता रहने पर भी जोर दिया। इस्लाम मजदूरों के इस्तेसाल के खिलाफ है। रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो। हकीकी अजमत मेहनत के बगैर हासिल करना मुश्किल है। दर हकीकत ये मेहनत और सनत ही है जिसने तहजीब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आज जिंदगी की ज्यादातर सहूलियात लोगों की मेहनत की वजह से हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल गलत है कि दस्ती मजदूरी एक गरीब आदमी की रोजी रोटी का जरिया है। हमें जिस्मानी मुशक्कत को ज़हनी मुशक्कत से कम काबिल एहतराम नहीं समझना चाहिए। किसानों की सख्त मेहनत के बगैर हमें खाना नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं कि खाना हमें जिंदा रखता है और दूसरी सरगर्मियां करने में हमारी मदद देता है। कोई भी पेशा बजाते खुद आला या अदना नहीं होता। ये वो तरीका है जिस पर हम इसकी पैरवी करते हैं जो इसे बावकार या गैर मुअज़्ज़ज़ बनाता है। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि तमाम मेहनत मुकद्दस है। फील्ड में काम करने वाला और वर्कशॉप में एक कारीगर या हुनरमंद कारकुन की जिंदगी में एक अजीम मिशन हो सकता है। अगर वो अपनी रोजी ईमानदारी और हलाल तरीके से कमाता है तो उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मेहनत के बेशुमार फवाइद हैं। मेहनत दूसरों पर इन्हिसार कम करती है, खुशहाली लाती है। ये कारकुन की इज्जत नफ्स को बेहतर बनाती है और बातिल का इलाज करती है। सख्त मेहनत जाती सेहत को फरोग देती है और पूरे माशरे की तरक्की का बायस बनती है। हमें मेहनत की कदर करनी चाहिए और मजदूरों का एहतराम करना चाहिए। हमें अपने रोजमर्रा के काम खुद करने चाहिए। हमें अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी ऐसा करने पर आमादा करना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि ये इज्जत नफ्स, ज़हनी सुकून और खुशहाली को यकीनी बनाता है। आज की तरक्की याफ्ता कौमें अपनी खुशहाली और वकार कई नस्लों की मेहनत की मरहूने मिन्नत है। हमारा मजहब भी हमें इज्जत नफ्स और मेहनत की इज्जत का दर्स देता है। अगर अल्लाह सुब्हानो ताला ने कभी आदमियों का एक मजमुआ लिया होता जो तमाम खाने पीने का काम करे और कोई काम ना करे तो वो उनका सिर्फ मुंह बनाता और हाथ ना बनाता। अगर उसकी मुराद उस तबके से होती कि वो तमाम काम करे और ना खाए तो वो सिर्फ उनके हाथ बनाता और मुंह ना बनाता। इन्हें बेकार रखना इनके साथ ज्यादती है। हकीकी इज्जत इस फख्र में मुज़मिर है कि आप अपना काम खुद से कर सकें और माशरे के लिए भी। इन्हें बेकार रखना इनके साथ ज्यादती है। हकीकी इज्जत इस फख्र में मुज़मिर है कि आप अपना काम खुद से कर सकें और माशरे के लिए भी। कायद आज़म ने भी मेहनत पर जोर दिया। एक बार उन्होंने कहा, काम काम और काम। आपको अपने आप को पूरी दिलजुमई से अपनी पढ़ाई के लिए वक्फ करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए, आपके वालिदैन और रियासत के लिए आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।